Okay. Now, when or why did Fuller dedicated his book Gulam Giri to American slaves? देवव्रत. अभी पूछते हैं. Fuller dedicated his book to Gulam Giri to Red Indians because he thought that lower caste in India are Similar condition. are similar condition and Aryans which are from outside of the country are living in the Country. They are Europeans where who are trading slaves in America. So ये भी बोलना पड़ेगा कि in America slaves fought for against this practice and after 10 years of long civil war they managed to stop this bad practice. ये भी तो लिखाया गया है. So he was inspired by this movement and thought that if the Indians, the lower caste people in India will follow the same pattern, they will also be away from this ill practice and caste system. So he dedicated his book Gulam Giri to बोलो भाई, बताती ही नहीं है तुम. बताओ पूरी बात. तुम सेंटेंस ही पूरा नहीं कर पाई. हाँ बोलो. Dedicated his book to said the Red Indians or the Americans. हाँ अमेरिकन स्लेव्स. ठीक है, सही कह रही हो. अब देखो Sir, also एक और line होगी ना कि he linked it that lower caste peoples are slaves of upper caste people. yes, lower caste people are saved. How did Jyoti Rao, the reformer, justify their criticism of caste inequality in society? Sorry. That he criticized, Jyoti Rao was the reformer, he criticized the caste system in society. So how he justified his criticism? उन्होंने अपनी आलोचना को कैसे सत्यापित किया या कैसे उसे सही ठहराया? How Jyoti Rao justifies his criticism the caste system in India? हाँ बोलो. बताओ बताओ. भाई लैक्मे पाउडर लगा के आने से तो कुछ नहीं होगा, बताना नहीं पड़ेगा ना. क्यूट तो लग रहे हो बट बताना तो पड़ेगा. निखिल बोलो. The Jyotirao Phule attacked on Brahmins to हाँ. Attack Brahmins. सृष्टि. Jyotirao Phule attacked on Brahmins for their superiority, हाँ. for their right. Aryans came out from. समझ में नहीं आ रहा है. पिछले क्वेश्चन में भी जो तुमने बोला मुझे समझ में नहीं. आप बोलो. Jyotirao Phule attacked on Brahmins because they were superior and he said that lower caste in India were true children of Indians of the country India, and Aryans are the invaders, so they have no right on their land and दो चीज बताई थी. किस चीज पे? लैंड एंड land and power हाँ. and लगभग पूरी बात आपने बता दी है. सो And he said that he said that before Aryans the golden age they used to enjoy. ये बात सही. ये जरूर लिखना है कि गोल्डन एज. ओके. नाउ पलक इन द ब्रिटिश पीरियड what new opportunities opened up for people who came from castes that were regarded as low? During British period, formation of cities were happening. So many lower caste people migrated to the cities like Coolies. From villages they migrated to cities. Coolies
struggles and money. No? It was very raw answer. हाँ बोलो आद्या. So, when the Britishers come, there are many new opportunities for lower caste people. Britishers came, ठीक है. Britishers came. हाँ. Many new opportunity like the cities are made and the workers are needed, so the lower caste people migrated to the cities, From villages, villages and get work like police, etc. And from Bihar and Calcutta, many lower caste people go to Assam for plantations, and many also go from Malaysia or Trinidad and and Indonesia. Indonesia for work. ठीक है, तुमने अच्छी सारे पॉइंट्स कवर किए, लेकिन तुम्हें सब बताना चाहिए कि कौन कौन आए. जैसे कैरियर्स आए, शू मेकर्स, ठीक है, और बहुत सारे लोग आए. वो सारे नाम लेने होंगे, 7-8 नाम. ओके. Aditi, why were Christians missionaries attacked by many people in the country? Would some people have supported them too? If so, for what reasons? Christian missionaries were suspected that they convert the Hindu people into Christian with the power and the money. So they were attacked. Lower caste people supported them as they saw them as the opportunity to get away from the oppressive system of the Varna system. They thought that it will help them to gain respect, social and economic status. तुमने पूरी बात बताई है. इसी चीज को श्रेया रिपीट करो. आपने जो बताया है वही श्रेया से भी सुनिए. तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट हो ये बता देंगे कि कहाँ तुमने कमी रह गई. ठीक है, हाँ बोलो बेटा. क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें पकड़ती, इनको पता रहता है. हाँ बोलिए, कहाँ पे? ये तो देख ही नहीं रही है. हाँ श्रेया, आर यू हियरिंग? बताती. चलो तुम बताओ. श्रेया बहुत शाई नेचर की. Missionaries suspected that would convert Hindu into Christianity by using money and power, and they attacked it, supported by lower caste people to respect economic status. भाई तुम्हारे सेंटेंसेस का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा. तुम बोल रही हो ग्रुपिंग ऑफ सेंटेंस है, लेकिन उसका मतलब क्या है? पहला सेंटेंस तो ठीक बोला है, उसके बाद बिखर गया. हाँ बोलो दिव्या. Christian missionaries Were suspected. they were suspected that if Hindu people they convert Hindu people into Christianity by money and power, and it attracted them. Lower caste people supported them for their economic status, education, and पॉइंट्स कम पढ़ रहे हैं. कौन बताएगी? आप बताओ दिव्यांशी. Christian minorities क्रिश्चियन. missionaries हाँ. were suspected it would convert Hindu people into Christian by using money and power. It attracted सृष्टि बोलो. Christian missionaries were suspected that it would change Hindu people into Christian religion by using power and respect, and then the people were attracted to Christians. They thought that if they get attached with them, so they can gain their respect and social status and education.
ठीक है. Devrat, what were the different reason people had for not sending girls to school? Sir, they feared that if girls go to school, they move away from home. Sir, they have to travel to public places. This may spoil their girls. If they are going to school, they did not take their domestic work. Repeat करिए अर्पित. They fear that girls go to school, it may take away from their home. It may take girls away from their home. It may travel from public places. Girls are traveling from public places through public places. It spoils their life. They thought, ऐसे लिखा है, ये स्पॉइल नहीं करेगा लेकिन वो ऐसा सोचते थे. They thought. हाँ और बोलो. If girls go to school, they do not do their domestic duties. Right. Shreya, how did the knowledge of ancient text help the reformers promote new laws? बताती नहीं. मानसी बोलो. बहुत शाही है ये श्रेया. Reformers try to convince them that they are following whatever they are following, those are children एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन तुम बता ठीक रही हो. एक लाइन और बोलोगी तो बात बन जाएगी. बोलो. इतना बोला है वो ठीक है. एक लाइन और बोलो. लक्षिता बोलिए. Reformer tries to convince that people that whatever the practices illful and are not now here now. जसमिता. Reformers try to convince that people who are informed. तो सेंटेंस ही नहीं बना. अमय बोलो. Sir, the reformers live to convince people that the Try to convince people. convince people that the rituals they are following are nowhere in ancient text. This gives more moral support to them, and on the basis of this, British government makes new law to reform this society. सही है. पूरा बता दिया. चलो. Now next question. Women, caste and system. Chapter solution. Reforms. तो आदि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम पहले आपसे पूछ लेते हैं. ठीक है. तो व्हाट डिड अम्बेडकर वांट टू अचीव थ्रू द टेंपल एंट्री मूवमेंट. बोलो जरा. Ambedkar wanted to achieve the temple entry movement that the lower caste people that are not allowed to enter in the temple, they also want to go to temple so they can. Okay. What did Ambedkar want to achieve through temple entry movement? Sir, B.R. Ambedkar started a temple entry movement in the year 1927. In this, the lower caste people were not allowed to enter the temples and also use all the public facilities that were available. And Brahmins only had the authority to follow that. So by this movement, they wanted that the lower caste people and other people should also be allowed to go to temples and use all the public facilities. And also spared
फ्रॉम यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज, हमने कहा ऑल्सो यूजिंग, तो स्पेयर्ड फ्रॉम यूजिंग, ये ऑलवेज और ऑल्सो डिनाइड टू एक्सेस टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज एंड उनको डिनाई किया जाता था ना, डिनाइड टू एक्सेस। ठीक, बाकी तो बहुत अच्छा बता। अब यही बात शौर्य से सुनो, चलो, क्योंकि पानी पीकर आ गए हैं, अब न्यू एनर्जी के साथ ये बता रहे हैं। हाँ बोलिए बेटा, 2 लोगों से सुना दिया, आज तो ये लट में ही लगा कर आ गए। चलो लेट अस सी, एक और क्वेश्चन पूछेंगे शौर्य से, देखते हैं। So, Ambedkar was born in Mahar family. In Mahar family, जो कि अनटचेबल थी, शू मेकर थी, ठीक है, which is low caste. Since childhood to adulthood, he has seen many discrimination, ठीक है, in society. So now he experienced many discrimination existed in society, ठीक है, and for example denial of education, denial for access to temple and public places, for access to temple and public places, untouchability, ये सारी चीजें उन्होंने देखी थी। So he started, कब टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू हुआ शौर्य, बोलो। So he started temple entry movement, डिनाइल की स्पेलिंग देखते हैं। हाँ, डिनाइल मीनिंग ए आएगा। सो डिनाइल ऑफ एजुकेशन, डिनाइल फॉर एक्सेस टू टेम्पल एंड पब्लिक प्लेसेस, अनटचेबिलिटी। सो ही स्टार्टेड टेम्पल एंट्री मूवमेंट। इन 1927 to ensure that everybody gets entry in temples and caste system is abolished. Abolished का शौर्य क्या मतलब होता है? बोलो। हाँ, हटा देना। He was in favor of equality in society. वो चाहते थे कि there should not be prejudice on the basis of caste. Nobody is superior and nobody is inferior. So he wanted, आशा और सेंटेंस पूरा करो। He wanted, कुछ भी नहीं बता रहे हो, आज सिर्फ बैठने के लिए आए हो। He wanted to abolish caste system
वो तो हो गया हाँ So, And he wanted to get the people in equality. society. हाँ इक्वलिटी इन सोसाइटी। तुम्हारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना, ऐसे लोग सिर्फ बैठने नहीं आए हो कि घर में से भेज दिया गया है ना। Why were Jyotirao Phule and Ramaswamy Naikar critical of the national movement? Did their criticism help the national struggle in any way? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है शौर्य? सर कि ज्योतिराव फुले और रामास्वामी सर नायकर सर क्रिटिकल सर क्यों थे नेशनल मूवमेंट के? मतलब क्रिटिकल का क्या मतलब है? सर सपोर्ट में हैं? सपोर्ट में क्यों थे, यानी उनका इतना महत्व क्यों है? हाँ। और डिड देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल स्ट्रगल इन एनी वे? हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन हुए, नेशनल स्ट्रगल हुए आज़ादी के लिए, तो क्या उनके मूवमेंट से कुछ फर्क पड़ा होगा नेशनल स्ट्रगल में? Yes, sir. क्या फर्क पड़ा होगा? सर कि उनमें थोड़ा मतलब उनकी सोच बदल गई, उनकी हमें इक्वलिटी में रहना चाहिए, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए एक दूसरे को। और अच्छा, रामास्वामी नायकर का दूसरा नाम क्या है? सर ठीक है, तो पेरियार फैमिली, उन्होंने क्या किया था पेरियार में, किस लिए लड़ा था? उन्होंने बिल्कुल सही। सेल्फ रिस्पेक्ट में उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। बिल्कुल ठीक है। क्या वो द्रविडियन थे कि आर्यंस थे? So now Jyotirao Phule and Naikar were critical of national movement in their own times. ज्योतिराव फुले बहुत पहले थे, लेकिन नाइकर बहुत बाद में आए। वो कांग्रेस के समय में आ गया, तभी कांग्रेस वाला चैप्टर आने वाला है तो समझेंगे। ज्योतिराव फुले एंड रामास्वामी नाइकर That is पेरियार। पेरियार का क्या मतलब होता है शौर्य? सर जो पापा ठीक है, एल्डर, बड़ा भाई। सो क्रिटिकल टू नेशनल मूवमेंट, सर पेरियार की स्पेलिंग गलत है ना, वाई आर होगा ना। यस सर। क्रिटिकल टू नेशनल मूवमेंट। ऐसा क्यों था? बिकॉज ज्योतिराव फुले he Jyotirao Phule gave advice to Shudra। ठीक है, stated, उन्होंने क्या स्टेट किया? स्टेटेड दैट अपर कास्ट एडवाइस देते हैं शूद्र को टू ज्वाइन इन नेशनल मूवमेंट। However, if they get independence, again they will prejudice us, yeah, they will feel superior and they will dishonor us। तो ऐसा उन्होंने बताया कि वो अपना काम निकालने के लिए तुमको नेशनल मूवमेंट में ला रहे हैं। Until equality is not given, we will not join। और उसी के लिए महात्मा गांधी ने बोला भी कि ये हरिजन है और सभी सम्मानित हैं, ऐसा बोला ना। तो सर क्रिटिकल के पहले बार आएगा। क्या आएगा? सर क्रिटिकल के पहले बार आएगा। अच्छा हाँ, इसको वर्ड लिख देते हैं। वर्ड क्रिटिकल स्टेटेड दैट अपर कास्ट एडवाइस। अपर कास्ट क्या एडवाइस दे रही है? अपर कास्ट एडवाइस शूद्र के अलावा और किसको? मुस्लिम एंड पारसी सबको दे रही थी। मुस्लिम सर एडवाइस तो हैं? सर एडवाइस तो बोलो। सर एडवाइस हाँ, कास्ट एडवाइस्ड शूद्र, पारसी एंड मुस्लिम टू ज्वाइन टुगेदर नेशनल मूवमेंट। ठीक है, however
आफ्टर इंडिपेंडेंस वी विल गेट नथिंग। उन्होंने बताया कि हमको आज़ादी तो हम दिला देंगे उनको, हाउ एवर आफ्टर इंडिपेंडेंस शूद्र, मुस्लिम एंड पारसी विल बी कंटिन्यू टू बी डिस्क्रिमिनेटेड, क्योंकि वो उनको उनका राइट तो देंगे नहीं। तो इसलिए शूद्र, मुस्लिम एंड पारसी will be discriminated। बात आप समझ लीजिए कि पारसी कहाँ से है। भारत में 5000 पारसी हैं और 10,000 जूस हैं, बस इतने ही हैं। तो ये देख लीजिए, ये अफ्रीका है और अफ्रीका में ये क्या है बोलो, दैट इज गल्फ कंट्रीज है। अब गल्फ कंट्रीज के इधर आ जाओ तो फिर और आगे आने के बाद यहाँ पर, और फिर यहाँ से इंडिया शुरू हो जाएगा। यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, यहीं पे ईरान है। और ईरान को सबसे पहले फारस कहा जाता था। क्या कहते थे? फारस। और फारस में एक वहाँ पर बहुत बड़े जो प्रिएचर्स थे, जरथुस्त्र थे, तो उन्होंने इस धर्म की स्थापना की, फारसी धर्म की। ठीक है, तो वो लोग फारसी लोग क्या होते हैं, दे आर ईरानियंस थे। जब ईरान पर किसका अटैक हुआ, ऑटोमन एम्पायर, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि अगले चैप्टर में जाने वाले हैं, उसमें टोटल मुस्लिम मूवमेंट इसी पे बेस्ड है। ईरान पर किसका अटैक हुआ बोलो, क्या कोई बताएगा? ऑटोमन एम्पायर में कौन राजा होता था? क्या सुल्तान होता था? सुल्तान। और सुल्तान जो होता था वो मुस्लिम का सबसे बड़ा हेड होता था। जैसे आप सोचिए कि हमारे यहाँ अगर शंकराचार्य ही प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या अच्छा होगा? रिलीजियस हेड अलग होना चाहिए। अगर रिलीजियस हेड के हाथ में तुम पावर दे दोगे, पॉलिटिकल पावर, तो बहुत क्रूर हो जाएगा। रिलीजियस हेड अलग है, वो तो लोग श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन अगर उसी को वही पावरफुल रहेगा तो उस हेड के लिए लोग एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, कहेंगे रिलीजियस हेड बन जाओ, खुद ही प्रधानमंत्री बन जाओ। लेकिन मुस्लिम में हमेशा यही रहा है कि जो रिलीजियस हेड, उसका क्या नाम होता था बोलो? खलीफा। क्या कहते थे? तो भारत में जो 1919 में खिलाफत मूवमेंट चला, वो उसी खलीफा के लिए चला। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब ऑटोमन एम्पायर, उसने ईरान पे भी कब्जा कर लिया, सब पे कब्जा करता जा रहा था। ऑटोमन एम्पायर का कौन होता था सुल्तान, बताओ? खलीफा। उसका सुल्तान का दूसरा नाम क्या था? भारत में उसे क्या कहते थे? खलीफा। जैसे तुम्हें भी कुछ ये शौर्य बोला करता, तुम कहेंगे खलीफा हो क्या, जो हम क्यों जाए तुम्हारे साथ, हम उसके साथ जाएंगे, ऐसे कहता है कि नहीं? खलीफा का मतलब सरदार। तो किसने बोलो खलीफा की पावर कम कर दी, और कब कम कर दी? फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन जीता? इंग्लैंड जीता, अमेरिका जीता, समझ में आया? जर्मनी, ये सब देश जीते। तो इन्होंने इस ऑटोमन एम्पायर की पावर को क्या कर दिया? कम कर दिया। इसके सारे राज्यों को वापस ले लिया, बोलो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। समझ में आया? अब ये टर्की तक ही सीमित रह गया। अभी भी टर्की है ना, उसको तुर्की कहते हैं, टर्की। तो अर्दोगन, जो सैयद अर्दोगन वहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं, समझ आ गई बात? तो वो कहाँ तक सीमित रह गया? और इसी ऑटोमन एम्पायर ने ईरान में से सभी जरथुस्त्र के लोगों को मार डाला, और पूरे विश्व में सिर्फ 5000 फारसी बचे हैं। फारसी जिनको कहते हैं, वो 5000 पारसी कहाँ रहते हैं? किसने शरण ली? भारत में। और उन 5000 पारसियों के पास भारत की 30% संपत्ति है। जैसे रतन टाटा, बिरला, ये सब पारसी हैं। भारत की पहली, अब अगले चैप्टर में पढ़ने वाले की कितने अमीर है ये, सारा फंडिंग इन्होंने किया नेशनल मूवमेंट का, बहुत अमीर है। फर्स्ट इन्होंने क्रिकेट टीम बना ली, इतना पैसा था, अपने मैदान सबसे। और उन 5000 में 3000 तो बम्बई में और सूरत में ही रहते हैं, हीरों के व्यापारी। समझ में आ गई? तो ऑटोमन एम्पायर ने किस पे कब्जा किया? ईरान में। इस समय ईरान 100% मुस्लिम कंट्री है, और सारे फारसी को उन्होंने जिबा कर दिया, कट कर डाला। तो समझ में आ गई कि नहीं? तो ये चीज हुई। इसीलिए खिलाफत मूवमेंट इंडिया में चला। खिलाफत मूवमेंट क्या? कि खलीफा को फिर से पावर दो। क्या अंग्रेज जीत गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में? हाँ, कौन लोग जीते थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में? फर्स्ट वर्ल्ड वार में दैट इज ब्रिटिश जीता था, अमेरिका,
और भी कंट्री थे वो हम बाद में बताएंगे। तो बोलो अब गांधी जी ने कहा तुम्हारे खलीफा को तो इन्होंने पावर कम कर दी है, तुम भी लड़ो अंग्रेजों के खिलाफ। बोले हम भी लड़ेंगे, लेकिन अपने देश के लिए नहीं लड़ेंगे, हम अपने खलीफा के लिए लड़ेंगे। तो इनका गांधी जी का स्वराज मूवमेंट और उनका खिलाफत मूवमेंट एक साथ मर्ज हो गया। वो अब वो बोले हमें क्या लेना देना, ये रहे ना रहे, हमें तो हमारा खलीफा चाहिए, क्योंकि उनके में नेशन की भावना नहीं होती। वो कहते हैं 53 जो नेशन है मुस्लिम के वो एक ही हैं, वो हम उनके साथ रह सकते हैं। उनके लिए पाकिस्तान भी ज़्यादा सगा है, क्योंकि वो नेशनहुड की फीलिंग नहीं होती उनमें सिर्फ रिलीजन का होता है। समझ आ रही बात की नहीं? तो हम आगे देखेंगे कि जो दो मुस्लिम ब्रदर्स थे वो उन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट चलाया और वो गांधी जी के साथ सबमर्ज हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे, और अल्टीमेटली ज्योतिराव फुले ने क्या कहा, दे विल यूज अस एंड अल्टीमेटली दे विल गेन इंडिपेंडेंस एंड फाइनली दे विल कंटिन्यू टू डिस्क्रिमिनेट विद अस, व्हाट वी विल गेट, क्या हम कुछ पा सकेंगे? तो ये बात है। अब देखिए मुस्लिम और पारसी होते थे, जैन बुद्ध, ये सब नहीं? जैन बुद्ध थे, तो जैन बुद्ध अब सुपीरियर थे बहुत सारे, मतलब उनका वैसा नहीं था, ठीक है। तो इन सबको ही मिलाने की कोशिश, इनके जब सब जगह मारे जा रहे थे तो जो पारसी बचे थे तो क्या है, उनको इंडिया में भी डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा, डरे हुए लोगों को ज़्यादा किया जाने लगा। फिर इसके बाद क्या, मुस्लिम ज़्यादा, जब एक बार इनकी सल्तनत चली गई, हम लोगों ने देखा बहादुर शाह जफर की भी सल्तनत चली गई, तो मुस्लिम तो थोड़े थे, जब तक पावर में थे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब पावर चली गई तो यहाँ डोमिनेंट क्लास कौन थी, मेजॉरिटी कौन थी, हिंदू ही तो थी। और हिंदू में फिर आर्यंस की शक्ति बढ़ने लगी, क्योंकि पैसा उनके पास सबसे ज़्यादा था। 17 बार इनको बाहर से मोहम्मद गजनवी ने आके लूटा, वो 100 ऊँट भर के सोना ले जाता था, दिल्ली का सोना ही नहीं ख़त्म हो रहा था, पता नहीं कितना सोना वहाँ भरा था। 17 बार लूटा, 100 बैलगाड़ी भर के सोना गया, तो वो बार बार आ जाता था, बार बार फिर लोग ज़मीन से खोद के रख लेते थे, फिर वो लूट ले जाता। ऐसे हुणों ने आक्रमण किया, इसी तरीके से चंगेज़ खान ने, सबने कहा यहाँ तो सोना ही सोना है, लूटो इतना मत। और सोमनाथ के मंदिर पे 18 बार आक्रमण हो गया, वो रत्न जड़ित है, फिर लोग रत्न जड़ देते थे, मंदिर को जड़ देते थे बार बार हीरों से। अभी भी सूरत विश्व में सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य है, तो आप ये समझिए कितना हीरा है सूरत में। समझ में आई बात की नहीं? तो दीज वर डिस्क्रिमिनेटेड, ऐसा ज्योतिराव फुले ने कहा। और दूसरी बात क्या है, रामास्वामी नईकर की भी सुनो, तो उन्होंने ये बात कही कि क्रिटिकल, कि मतलब क्रिटिकल का मतलब है यहाँ पर ऐसा समझा जाना चाहिए कि सस्पिशियस है, कि इन्होंने मना किया। सो अब ये देखा, he stated after independence me here and you over there, ये भी इन्होंने बोला। ज्योतिराव फुले ने क्या बोला, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सेंटेंस आपकी बुक में लिखा हुआ है, he stated that after independence me here and you over there। तो मतलब इनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता था कि इन्होंने मना किया था लोगों को कि लड़ाई न लड़ो, बट ये सोचते थे कि इक्वलिटी इसी बेसिस पे आ जाए। जब अब देखें, नेक्स्ट इज E.V. Ramaswamy became the member of Congress but left। कुछ लोग सोचते हैं कि देखो कांग्रेस से ये छूट गए और डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो जाना तो नहीं चाहिए था, ऐसे सोचते हैं। तो वो भी क्रिटिकल है, लोग उनकी बुराई करते हैं, इनके भी कर रहे हैं, ऐसे वो क्यों भड़का रहे हैं लोगों को, इससे अच्छा लोग आ ही जाते हैं, ऐसे सोचते हैं, हम भी सोच सकते हैं। तो ये क्रिटिकल है, तो इसलिए। और दूसरा, तो E.V. रामास्वामी नईकर कौन थे बोलिए? स्वामी नईकर फर्स्ट ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे पहले शामिल हुए, और बाद में जब उन्होंने देखा कि सीट ऐसे ऐसे लगा दी गई हैं, तो फर्स्ट ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस।
after noticing discrimination, he left it. And उसके बाद इन्होंने क्या किया? Due to caste distinction, so their assertion, forceful speeches and writing lead to rethink among upper caste national leaders. इन दोनों के, ठीक है? तो क्या किया? Both had given, दोनों ने क्या दिया? Powerful speeches, given powerful speeches and wrote columns in newspaper. इन्होंने कॉलम भी लिखे, संपादकीय लिखा नहीं रहता है, कुछ अलग से लेटर्स नहीं होता है न्यूज़पेपर, कॉलम्स इन न्यूज़पेपर which led to rethink upper caste people where they were wrong. कि तुम ऐसे ही खाली खाली नेशनल मूवमेंट चलाओगे, अकेले अकेले तो चला लो, हम नहीं चलते तुम्हारे साथ, हमसे डिस्क्रिमिनेशन करोगे, और फिर बाद में जब अंग्रेज तुम्हारा पैसा ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमारे पास, फिर बाद में पानी नहीं पीने दोगे, हम सब अपनी जान ऐसे ही लड़ते रहे। समझ में आई बात कि नहीं? सो दिस लेड अपर कास्ट पीपल टू रीथिंक ऑन देयर आइडियोलॉजी, या जो भी प्रैक्टिस नहीं, दिस लेड अपर कास्ट पीपल to rethink about social practices. Now, the making of national movement 1817 to 1947. हाँ, यह तो उनका अपना पेपर रहा होगा। कुछ कॉलम होता है कि बाई एडिटर होते हैं और कुछ कॉलम होते हैं बाई रीडर, दोनों कॉलम होते हैं। तो अगर इनके अपने पत्र रहे होंगे समाचार पत्र तो खुद एज ए एडिटर लिखा होगा, वो से एडिटर्स कॉलम कहते हैं। पावरफुल स्पीचेस, ठीक है। और कुछ एडिटर्स कॉलम बोलो। लिख सकते हो, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, मतलब दोनों ने डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया, हम ये बताना चाहते हैं। मतलब हमें ज़्यादा डिटेल नहीं देना है और इसलिए वो क्रिटिकल है कि लोग कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, साथ आ जाना चाहिए। आप क्या सोचती हैं? आप जस्टिफाई करती हैं इस चीज़ को? क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता तो फिर बाद में हो सकता है इनको अधिकार ना मिलते, लोअर कास्ट को। लोअर कास्ट को अगर किसी को भी अधिकार नहीं मिलेंगे तो सोसाइटी में जब तक सब पहिए एक साथ नहीं चलेंगे सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती। ये थोड़ी हमें सोचना चाहिए कि यहाँ के लोग हैं तो दबा लो, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। सो इक्वलिटी शुड बी द मेन क्राइटेरिया। मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, अगर मान लो देवव्रत ये शौर्य अपनी बहन से लकमे छीन के लगा ले तो क्या तुम इसे सही मानोगे या गलत? गलत ना। देखो ये भी बोल रहा है। to 1947। तो धीरे धीरे हमें ये मालूम है कि 1857 तक की तो हिस्ट्री आपने पढ़ ली, 1857 तक तो पढ़ी चुकी हो कि क्या क्या हुआ। फिर अंग्रेज लोग थोड़ा समझ रहे कि नहीं, इनके इन सब चीज़ 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था कि नहीं, तो उसके बाद की बात एक है। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव रेड कि कैसे ब्रिटिश ने, सबसे शुरुआत से तुमने क्या पढ़ा कि ब्रिटिश ने कैसे कॉन्क्वेस्ट की टेरिटरीज कैसे जीता, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने क्या बनाए, अलग अलग प्रोविंसेस
क्या बना है? जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी प्रोविंस बनाया था कि नहीं, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो अलग अलग प्रोविंस बनाए, राज्य, प्रोविंस अभी भी राज्य को प्रोविंस कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने न्यू लॉज प्रोमलगेट किए बहुत सारे। आफ्टर दैट पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स की लाइफ के बारे में भी आपने पढ़ लिया क्या, कि उसमें ये चीज आपने पढ़ ली पीजेंट्स में कि ट्राइबल सारा जो फॉरेस्ट लॉ आ गए तो उनको जंगल नहीं जाने दिया जाता था, उनको पेड़ नहीं काटने दिया जाता था, ये भी तो तुमने पढ़ा कि पेस्टोरलिस्ट मूवमेंट क्या हुआ। आफ्टर दैट ये भी देखा कि कास्ट सिस्टम, यू हैव सीन द डिबेट ओवर द राइट्स ऑफ वुमेन, यू हैव आल्सो सीन कि ये भी होने लगा। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स भी हुए। और क्या तुमने ये भी देखा कि 1857 का रिवोल्ट, तो रिवोल्ट कैसे हुआ, बहादुर शाह जफर फिर वापस चले गए तात्या टोपे, और फिर वो बिजरीस कद, जैसा कि आयशी बताया करती हैं, कहाँ के थे बिजरीस कद, लखनऊ के नवाब थे, तो वो सब होने लगे, तो सब ने अपनी अपनी चीज़ें वापस लेनी। द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, अब चीज़ें मशीनों से बनने लगी और हस्तकला को पसंद नहीं किया जाने लगा। जब चीज़ें एक साथ मशीनों में बनेंगी तो हाथ की कला कौन देखेगा, बात समझ में आई कि नहीं, ऐसा होने लगा। तो इससे लोग बेरोजगार होंगे कि रोजगार मिलेगा, भाई 100 लोगों की रोजी जाएगी तो एक आदमी जाके फैक्ट्री में काम कर लेगा, मशीन तो कई गुना तेज काम करती है ना। ऑन द बेसिस, अब हम इन सभी चीज़ों के बारे में देखें कि डिफरेंट कास्ट वर वाइज डिससेटिस्फाइड, द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, द ऑफ नेशनलिज्म। इसका मतलब क्या है कि पहले नेशनलिज्म नहीं था। क्या तुम ये सोच रही हो आयुषी कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद नेशनलिज्म आया? पहले क्या था, लोग कहते थे राणा प्रताप की फोटो लगा लो क्योंकि ये राणा प्रताप की टेरिटरी है। फिर देवव्रत आके बोलेगा शौर्य, अब इसे अकबर ने जीत लिया, अच्छा अकबर ने जीतना, कोई बात नहीं, अकबर की लगाओ, जय अकबर जय अकबर। और राणा प्रताप, उनको लेना ही देना नहीं है कि किसकी टेरिटरी है। अच्छा अब और कौन आ गया, बहादुर शाह, बहादुर शाह तुम्हारी जय, जय हो बहादुर शाह, ऐसी होती है, किसी को मतलब नहीं कि कौन सा है। और अब क्या हो गया, अब ऐसा हो गया कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, न तुम्हारी लेंगे, क्योंकि इंडिया इज एलिगरी, भारत हमारी माता है, ना माता दी जाती है ना दूसरे की माता दी जाती है, हमने उसको रूपक बना लिया है। जब 1971 का वार हुआ था तो इंदिरा गांधी की एक आवाज़ पे कि भारत माँ खतरे पे है, लोगों ने अपने जेवर उतार उतार के बैलगाड़ियों में भर दिए थे, ले जाओ भारत माँ को बचाओ, गाड़ियाँ भर भर के सोना गया। समझो क्या पहले ऐसा होता? पहले नेशनहुड की भावना ही नहीं थी लोगों में, लोग ऐसे ही बोलने लगे हम भी चलेंगे लड़ने के लिए, हम ऐसे ही चलने को तैयार हैं। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी लोगों में फीलिंग होती है, तो वीरता हो जाती है। तो अब इस चैप्टर में अगले पेज में, नेक्स्ट पेज में ये लिखा हुआ है कि इंडिया बिलोंग्स टू सिटीजन ऑफ इंडिया, जो यहाँ के निवासी हैं, दैट इज ओनली इंडिया एंड वॉट एवर रिसोर्सेज आर हियर इट बिलोंग्स टू इंडिया। कितनी प्लेन भाषा है, ये किसी बाहरी को नहीं देंगे। अब जब ब्रिटिशर्स आ गए तो ये भी मान लिया गया कि आर्यंस को कहीं जाना नहीं, आर्यंस भी यहीं के। तो इंडिया क्या है, इंडिया इज द टेरिटरी, ठीक है, इन विच इट बिलोंग्स टू चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, भारत के लोग ही इंडिया है, इसके अलावा इंडिया कुछ नहीं है। और वॉट एवर रिसोर्सेज आर हियर बिफोर ब्रिटिशर्स, उनका इससे मतलब था ब्रिटिश के आने से पहले जो टेरिटरी यहाँ के लोगों की थी या जितनी ब्रिटिश ने ऑक्युपाई की है उतनी टेरिटरी इंडिया है, और वो इंडिया कुछ नहीं है, यहाँ के लोग ही इंडिया। इंडिया इज द पीपल ऑफ इंडिया एंड द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू पीपल ऑफ इंडिया। और ये बाहर के लोग क्यों ले जाएं, समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये बात यहाँ लिखी गई है, ठीक है, जरा देखिए, इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, चौथी लाइन पढ़ो, इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल द पीपल, कौन पीपल, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर, जो सारे लोग हैं जो ब्रिटिश से ऑप्रेस्ड हैं। ब्रिटिश एक दमनकारी शासन था ना, तो जो उससे ऑप्रेस्ड है दे ऑल आर इंडियंस। रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स आर मींट फॉर देम, ये सिर्फ उन्हीं के उपयोग के लिए है, तुम कहाँ से उपयोग करने आ गए?
ये बात कही गई, रिसोर्सेज आर मीन्ट फॉर इंडिया, यही बात इन्होंने बताई। तो ग्रेजुअली इमर्ज, और इसी तरह नेशनहुड की अभिधारणा प्रस्तुत की गई। हम ये बात यहाँ क्यों कहा गया 1870, बोलो जरा, तुम ही सही बता सकती हो। सर क्योंकि जैसे वो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसमें बहुत ट्राई करने के बाद भी हमें वो इंडिपेंडेंस नहीं मिली, तो पूरी बात इन्होंने कहला दी। देखो, और जैसे जितने और लोग नहीं बता पाते हैं जितना इन्होंने बताया। तुम्हारे कोई बड़ा भी है क्या, तुमसे बड़ा है घर में? देखो 1810 और 1870 फ्रांस में 3 बार नेशनहुड की अवधारणा रखी गई और 3 रिपब्लिक फाइट हुई। मतलब वहां पर फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, फिर वो फेल हो गई, राजा ने कब्जा कर लिया। लोगों ने कहा हम नेशन है फ्रांस और हमारी रूपक है मैरियानी। उन्होंने अपने फ्रांस को किस तरीके से देखा, एक मतलब जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं ना, तो वहाँ एक कोई जगह थी, वहाँ के लोग फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान देते थे, तो उस जगह के नाम पे जगह का नाम था। तो फ्रांस ने 3 बार युद्ध किया और फ्रांस ने कहा हम न दूसरे की ज़मीन लेंगे न देंगे। और फ्रांस के बड़े बड़े जो राइटर्स थे उन्होंने नेशनहुड की बात कही। उन्होंने कहा अब हमें एक दूसरे की टेरिटरी अगर हम लेते रहेंगे दुनिया में तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि सबके पास हाई इक्विप्ड वेपन है, तो सब लोग मारते ही रहेंगे, मारने पे कोई अंत है क्या? तो उसने कहा कोई अब किसी को ना मारो और पूरे विश्व का एक ऐसा डिवीजन करो लिंगुअल बेसिस पर, जिनकी लैंग्वेज एक हो, या कल्चरल बेसिस पर या हिस्टोरिकल बेसिस पर। तो भारत का डिवीजन किस बेसिस पर हुआ? हिस्टोरिकल की। हमने एक साथ खून बहाया अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए हमें इसके अलावा अगर हम डिवीजन करने चलेंगे तो भारत बचेगा ही नहीं। बात समझ में आई? तो हमने हिस्टोरिकल कल्चरल बेसिस पर कि जिनका कल्चरल ग्रुप है। तो यूरोप के बहुत सारे देश लिंगुअल बेसिस पर अलग हो गए। पॉलिश जो बोलते थे वो पोलैंड बन गए, जो स्कॉटिश बोलते थे वो स्कॉटलैंड बन गए, जो आयरिश बोलते थे आयरलैंड बन गए, और इसी तरीके से जो इंग्लिश बोलते थे वो इंग्लिशमैन या ब्रिटिश बन गए, जो फ्रेंच बोलते थे वो फ्रांस बन गए, जो जर्मन बोलते थे वो जर्मनी बन गए। तो अलग वहाँ भाषाई आधार पर विभाजन हुआ। हाउएवर वेरी डिफरेंट कंट्रीज केम टुगेदर आल्सो। क्या तुमको ये बात मालूम है कि इसमें ये यूरोप है और यहाँ पर आप देखो इसको पर्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो पर्सिया अलग है, फारस अलग है। जब फारस की बात की जाए तो ईरान समझना। तो पर्सिया के राजा ने यहाँ 39 स्टेट्स थे, उन सब से बोला अरे तुम भी तो जर्मनी बोलते हो, क्यों ना हम 39 कंट्रीज एक साथ आ जाए। उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सब एक साथ आ जाते हैं और मिलके जर्मनी बना लें। तो बोलो आज जर्मन जो बोलते थे उन्होंने जर्मनी बना दिया, अब पर्सिया नहीं रह गया। पर्सिया के राजा ने एक बात बोली कि चलो सब लोग जर्मनी बनाया जाए। इसको कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्या कहते हैं? क्योंकि सारे जर्मन बोलने वाले एक साथ आ गए तो जर्मनी बहुत बड़ा बन गया। सारे फ्रेंच बोलने वाले उन्होंने फ्रांस बना लिया। लेकिन हम लोग उस बात पर गौर करें जो अभी आयुषी ने बोला। आयुषी ने बोला कि फाइनली 1870 में सबसे पहला देश फ्रांस बना, जो तो 9th की हिस्ट्री में पूरा फ्रांस पे डेडिकेटेड। फ्रांस फ्रांस एंड फ्रांस। क्यों? क्योंकि विश्व का पहला देश जिसने पूरे लोगों को टॉर्च लाइट दिखाई, टॉर्च बियरर, कि देखो तुम भी नेशनहुड के बारे में सोचो, ये सबसे अच्छी चीज़ है। लोगों ने कहा अच्छा फिर वो राजा कौन होगा? तो फ्रांस ने कहा नो राजा, वी द डेमोक्रेटिक पीपल, हम जिसको चुनेंगे दैट विल बी अवर रिप्रेजेंटेटिव। बोले ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम लोग यहाँ की तो प्रजा समझते थे अपने आप को, हम सोचते थे बिना राजा के तो सब गलत हो जाएगा। क्या पहले कोई सोच सकता था कि बिना अकबर के बिना बाबर के कुछ होगा? लोग सोचेंगे लुटेरे ना आ जाए। फ्रांस ने कहा नो, देयर विल बी नो लुटेरा, वी आर द पीपल, वी आर द फ्रांस एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव बाय इलेक्शन विल बी अवर हेड एंड नो मोनार्की, नो इस ऑटोनोमस सिस्टम, कोई ऑटोनॉमी नहीं होगी। समझ में आ गई कि नहीं? तो एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं होगी। तो दुनिया हैरान होकर देखती रही, लेकिन फ्रांस ने इसे सफल करके दिखाया, 2 बार सफल हुआ। इसीलिए आयुषी ने कहा कि वहाँ जो बाद में जो 3rd 1870 के बाद जब वहाँ पर डेमोक्रेसी आई और सफल हुई तो महात्मा गांधी चकित रह गए।
बोले अरे मैं साउथ अफ्रीका में क्या कर रहा हूँ, 1915 में लौट आए। बोले हमने फ्रांस से प्रेरणा ली है, जैसे वहाँ डेमोक्रेसी आई है, वी वांट डेमोक्रेसी, हमें बहादुर शाह नहीं चाहिए, हमको तो अब डेमोक्रेसी चाहिए। फ्रांस में भी डेमोक्रेसी है, जो जिसको लोग यहाँ के चुनेंगे वही बनेगा। तो सबने कहा हम चुनेंगे, हाँ तो फिर चलो लड़ो, हम ही चुनेंगे, तो हम ही राजा हैं। समझ में आ गई नेशनहुड की परिकल्पना। तो व्हाट द थीम ऑफ नेशनहुड केम फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री विच हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, जिसने पूरे जीवन में कभी भी न किसी से 1 इंच जमीन ली, न किसी को 1 इंच जमीन दी। तो फ्रांस एक पहला नेशन बना, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके यूरोप के सभी देश नेशनहुड को आए। जैसे मैंने आपको बताया जर्मनी आया, इटली आया, यहाँ इटली है तो इटली भी धीरे धीरे, फिर ग्रीस इसके बगल है, ग्रीस आ गया, इटली आ गया, पोलैंड आ गया, सब करके एक एक आज़ाद हो गए। फिर किसी ने कभी किसी से लड़ा नहीं। तो यही चीज़ भी धीरे धीरे जब 70 में यह बात हुई तो इसीलिए हमने भी नेशनहुड की बात की, क्योंकि जो वहाँ के राइटर थे तब तक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, और हमने भी सोच लिया कि नेशन भी कोई चीज़ हो सकती है। फिर जब नेशनहुड की आ गई तो अभिंद्रनाथ टैगोर उन लोगों ने भारत माता का एक चित्र बनाया, शायद आपके इसमें भी बना, भारत माता करके नहीं, जो झंडा नहीं हो भारत के अंदर दिखाया जाता है, तो वैसा चित्र बना, ये बहुत फेवरेट हो गया। नहीं बना होगा तो 9th में देख लेना, बात समझ आ गई कि नहीं। तो ऐसे एलिगरी बनाई जाने लगी, उनके ऊपर गीत लिखे जाने लगे, वंदे मातरम लिखा जाने लगा। सो इस तरीके से नेशन की परिकल्पना आगे बढ़ी। बात समझ में आई। अब जरा देखो, दिस कॉन्शियसनेस बिगिन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म्ड आफ्टर 1850, स्पेशली दोस केम। वैसे ये चीज 1857 या 60 तक ये बात आ चुकी थी कि नेशनहुड, लेकिन नेशनहुड के बाद डेमोक्रेसी की भी एक बात, नेशनहुड तो एक होता है, लेकिन अगर राजा होगा तो राजा क्या करेगा बताओ, वो लड़ेगा और दूसरे की संपत्ति छीनेगा। लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर है उसको बाहर लड़ने की फुर्सत क्या है, वो सोचेगा अगली बार चुनाव कैसे जीते, उसका ध्यान कहाँ है। भाई समझ गए बात कि नहीं। तुम सोचो प्रधानमंत्री लड़ने जाए, अभी लड़ने जाए कहीं ऊंच नीच हो जाए, सब पैसा इधर उधर चले जाए, चुनाव भी न जीत पाए, वो नहीं सोचेगा कि कोई इलेक्टेड मेंबर कभी सोचेगा लड़ने के लिए। और राजा के पास सेना है, वो सेना देखेगा और लड़ो और जीतो। सो मोनार्की ऑलवेज इट इज अगेंस्ट नेशनहुड। मोनार्की इज एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। जितना जीतते जाओ वो तुम्हारा राज्य है, इट इज ए रीजन। मोनार्की क्या बताती है, मोनार्की समझते हो ना, राजा। तो और जबकि डेमोक्रेसी तुम्हारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो किसी से क्यों लड़ने जाएगा, नहीं। तो इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म समझ में आ गया। इसकी हमने कहाँ से प्रेरणा ली सृष्टि, बोलो। हमने नेशनल फ्रांस से। फ्रांस, अब डेमोक्रेसी की प्रेरणा भी किससे ली, फ्रांस। फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसने सबको, अब फ्रांस है कहाँ बताओ जरा, ये है फ्रांस। ये क्या है बोलो शौर्य, बताते नहीं, आज तुम पूरा लिप में लगाए हो। अच्छा, जर्मनी का प्रीवियस नेम क्या है बोलो। फारस का नया नाम क्या है, ईरान। पूरा देखने में है आज। अच्छा देखिए, कभी मैं बाहर सोचूं कि इतना सुंदर क्यों लग रहा है। अब जरा देखिए, तो now most of these were led by English educated professionals. All national movement started from 1870 to 1880, और ये किसके द्वारा स्टार्ट किए गए, these were started by English educated nationalists, जो बाहर से पढ़ लिख के आए, क्योंकि they are knowing, ऐसे जो यहाँ का है उसे फ्रांस के बारे में पता चल पाएगा, और जो बाहर पढ़ के आए वो जान रहे यूरोप में ये हो रहा है, वो हो रहा है, रोज नई चीज हो रही है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो यहाँ के वो नहीं शुरू करेंगे क्या। और खुद जो थे लंदन में पढ़ के आए थे महात्मा गांधी, वकालत उन्होंने कहाँ से की थी, बैरिस्टर से, लंदन से, तो वो भी जान रहे थे ये सब हो रहा है। यहाँ बैठने से नहीं पता चलेगा ना, यहाँ के न्यूज़पेपर में यहाँ बताएंगे नहीं, लोगों को लेना भी देना है क्या। तो ये बात देखिए, इसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, मैनी एसोसिएशंस वर मेड, मैनी एसोसिएशन वर मेड। क्या 3 एसोसिएशन है बताओ दिव्या, मेड बिटवीन
1870 to 1880। सर पूना सार्वजनिक सभा इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाराजा सभा बोलो जरा फिर से सारे नाम। सर इंटरनेशनल कांग्रेस, बोलो आप बोलो, आप बोलो दिव्यांशी। सर इंडियन नेशनल कांग्रेस और बॉम्बे लक्षिता। पूना सार्वजनिक सभा, सर इंडियन नेशनल कांग्रेस, सर मद्रास महाजन सभा और सर द एसोसिएशन ऑफ द इंडियन एसोसिएशन सभा। लगभग ठीक ठीक बता दिया, लिखते हैं। दैट इज पूना सार्वजनिक सभा, जो सभी के लिए हो वही तो सार्वजनिक सभा होगी। तो पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का मतलब उसमें फिर सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी नहीं है। जैसे कहीं देखा है एक सार्वजनिक शौचालय, क्या उसमें ये लिखा रहता है कि ब्राह्मण जा सकते हैं और शूद्र नहीं? सार्वजनिक। पूना सार्वजनिक सभा बनाई गई। और क्या बनाया गया? दैट इज इंडियन एसोसिएशन, भारतीय सभा। इंडियन एसोसिएशन का क्या मतलब है? भारतीय संगठन या सभा। और इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। मद्रास का शौर्य आजकल क्या नाम है? महाजन सभा। एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। दीज वर, ये बहुत एलाइट लोगों की सभा थी, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। इवन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में 72 लोग सबसे पहले इसके में वो जो थे, इन्होंने एक बैठक की और उसमें बड़े बड़े निर्णय लिए। समझ में आई बात की नहीं? सो ये पढ़े लिखे लोग थे। दीज वर हाईली एजुकेटेड फ्रॉम आउटसाइड। अब इनका नाम लिया जाएगा। सबसे पहले मुझे 4 एसोसिएशन बताओ कि 1870 से 1880 के बीच में कौन सी 4 एसोसिएशन? बोलो निखिल। सर पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन और नेशनल कांग्रेस। एक और बोलो जसमिता। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक और सर बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अच्छा बताया। चलो इतनी बात हो गई। तो ये सब सभा बनने लगी। वैसे नाम से लगता है जैसे लोकल हो, हाउ एवर देयर इफेक्ट स्लोली स्प्रेड, धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ने लगा। नाम तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर दे वर्क, उनका गोल क्या था? देयर गोल वन स्टार्टेड एज गोल ऑफ ऑल पीपल ऑफ इंडिया, नॉट फॉर वन रीजन वन कम्युनिटी। इन सभी का लक्ष्य क्या था? कि गोल फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया। इन्होंने जो भी काम किए फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया। और इसके अलावा दे वांट दैट इंडिया शुड बी सोवरन। व्हाट डज इट मीन बाय सोवरन मैम? भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो जाए। इसका क्या मतलब है? Independence in hands of population. हैंड्स ऑफ पीपल हो जाए एंड नो एक्सटर्नल मेंबर आउटसाइडर शुड इंटरफियर इन अवर मैटर। हम अपने मामले खुद देख सकते हैं। संप्रभु, स्वयं प्रभु हैं, हमारा कोई मालिक बनने की कोशिश ना करे। दे वांट सोवरन इंडिया। अंग्रेज निकल जाओ, हम खुद अपना देख लेंगे, निकलो यहाँ से। यही तो सोवरेनिटी होती है। वी कैन लुक आफ्टर आवर ओन मैटर्स इंटरनल, यू नीड नॉट टू गवर्न अस। सो दे वांट दैट इंडिया शुड बी, दे वांट वेलफेयर। इसके लिए फॉर ऑल इंडियन पीपल irrespective of caste, community, religion. All Indian people irrespective of caste, community and
रिलीजन। अब देखिए ये काम किया, दे वांट सोवरन इंडिया। तो वो सोवरेन इंडिया चाहते थे। ओके, सोवरेन का मतलब है संप्रभु, बाहर का हस्तक्षेप ना हो। अब जरा देखिए, द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड बिटवीन 1870 टू 1880। उस समय तक ये और बुरे दौर में पहुंच गया था, क्योंकि लोग अब एजुकेटेड होने लगे थे, शिक्षा पाने लगे थे, तो ये डिससेटिस्फैक्शन बढ़ गया था। और कुछ और भी ऐसे एक्ट बने। व्हाट वाज द आर्म एक्ट? बोलो, 1878 में जो आर्म एक्ट बना अध्याय, वो क्या था? बोलो दीदी। इंडियंस जो थे उन लोगों को अब कोई भी आर्म्स मतलब गन से सब रखने को डिसअलाउ कर दिया गया। और जबकि इंडियंस में कई राजा भी थे, उनसे बोले, उनकी अपनी लोकल सेना भी थी, जैसे अवध की सेना, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई हथियार ही नहीं रखेगा, जमा करो सब। तो ये डिससेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा? लोग सोचने लगे कि अब हम हथियार ही नहीं रख सकते, हम तो अवध को अपना नवाब मानते थे, उनके हथियार ही जमा होगा। सो इन 1878 आर्म एक्ट केम which disallowed Indians for keeping arms। एक तो ये डिससेटिस्फैक्शन का कारण था। अब जरा देखिए, दूसरी चीज है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। दूसरा भी एक एक्ट आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बोलो देवव्रत, ये क्या है? सर ये इसलिए बना था सर, जो भी लोग सर गवर्नमेंट। हाँ बोलो। ठीक है जाइए। सर ये सर उन लोगों के लिए बना था जो सर उन लोगों को साइलेंस करने के बाद जो सर गवर्नमेंट के सर। हाँ, वर्नाकुलर का मतलब जो देसी भाषा में ब्रिटिश के खिलाफ कोई अगर लिखेगा तो उसका प्रिंटिंग प्रेस ही उठा लिया जाएगा। तो इफ समथिंग इज प्रिंटेड या पब्लिश्ड विच इज ऑब्जेक्शनेबल टू ब्रिटिश रूल, ऑब्जेक्शन तो उठाएगा प्रेस, और किस लिए होता है, लेकिन अगर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो प्रेस बंद और उसकी मशीन उठ जाएगी। सो इट सेज, एक्ट सेज दैट it said that if something is published by local newspaper गलत है क्या? बोलो। सर ये कैसा आएगा? disallowed। तो if something is published by local newspaper and is objectionable, which is objectionable, to British rule, then that paper, that press will be banned। ये भी एक प्रिंटिंग प्रेस उठा ले जाएंगे, बुक में लिखा है। अब जरा देखो, एक ये भी चीज हो गया। अच्छा, एक और चीज है कि जो इंडियन जज हैं वो ब्रिटिशर्स के को पनिशमेंट नहीं दे पाए। तो ये तो क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन है ऑन बेसिस ऑफ रेस, कि गोरे लोग काले लोग में भेद है कि नहीं, कि भारतीयों को ब्रिटिश जज पनिशमेंट दें और जो भारत के लोग हैं बाहर से बैरिस्ट्री करके आए हैं, जज बन रहे हैं, कह रहे हैं तुम अगर ब्रिटिशर्स को तुम पनिश नहीं कर सकते। ये क्या बात है? नहीं। तो इससे लोगों को पता चल गया दे आर ओपनली प्लेइंग रेस कार्ड। तो उन्होंने खुलेआम भी लिखने लगे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस पार्क। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन उनको चलती गाड़ी से ही जैसे उतार दिया गया था। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, यू आर इंडियन, हाउ कैन यू ट्रेवल इन द फर्स्ट क्लास। जबकि वो बैरिस्टर भी थे, नहीं कर पाए ना। अब देखिए
In 1883, there was Ilbert Wilaya. In 1883, that is Ilbert Bill, stated that Indian judge cannot give punishment to British people, ठीक है, या उनको हियरिंग नहीं कर सकते, कैन नॉट ट्रायल ब्रिटिश पीपल। So, but इसमें भी लिखा है the bill provided for the trial of British. हाँ देखो, the bill provided for the trial of British people and sought equality, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इस बिल को विड्रॉ कर लिया। तो इन्होंने स्टेटेड दैट इंडियन जज कैन ट्राई, वो कैन ट्रायल ब्रिटिश पीपल, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध के बाद ये बिल हटा दिया। बोले नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे। तो पहले इन्होंने भेजा कि सब कोई कर सकता है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका क्या किया, विरोध किया। ईस्ट इंडिया कंपनी तो खैर नहीं रह गई थी, इसके बाद 1857 के बाद ही ब्रिटिश रूल आ गया था। अब उसके बाद तो आप देख रहे थे कि जो पहले क्या होता था बताइए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको बाद में वायसराय बनने लग गया था। तो उन्होंने बोला था इंडियन जज कैन ट्रायल ब्रिटिश पीपल, बट later on this bill was taken back, ये बिल वापस ले लिया गया। इसके ऑब्जेक्शन के बाद ब्रिटिशर्स के ना, So, British की जो जज होती है आखिर उन्हें नहीं कर सकते हैं, तो ये सो दिस मेड डिसकंटेंट, इससे लोगों में असंतुष्ट, कंटेंट का मतलब है संतुष्टि और डिसकंटेंट का क्या मतलब है, असंतुष्टि। दिस हैज डिसकंटेंटेड इंडियन पीपल, ठीक है, दिस हैज डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट कर दिया। ये शब्द कई बार आएगा, इसलिए लिखाना जरूरी है इस शब्द में, इंडियंस। अब देखो, इसके अलावा देयर वर अदर, फॉरेस्ट लॉ हैज मेड द इंडियन ट्राइबल लाइफ वेरी फिक्स्ड। तो फॉरेस्ट लॉ हैज मेड लाइव्स ऑफ ट्राइब पीपल क्रिटिकल, उनकी दशा बहुत क्रिटिकल बना दी थी। तो ये भी सारी चीजें थी। एंड देयर कंपाइलेशन ऑफ ऑल दिस सिचुएशन लेट दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट। गांधी जी पहुंचे आदिवासियों के पास, तुम क्या चाहते हो बताओ। बोले देखो हमें जंगल में लकड़ी नहीं काटने दें। अच्छा बोलो स्वराज में आ जाओ, तुम्हें लकड़ी का अधिकार मिलेगा। उन्होंने बोला नहीं देश आजाद होगा, बोले लकड़ी तुम्हें कट देगी। हाँ हम भी जान देंगे। अच्छा सूरत में पूछा तुम्हें क्या चाहिए, बोले हमारा जो कपड़ा मिल है वो बंद पड़ा, कपड़ा मिल के लिए लड़ो। तो जो जहाँ का था मैनिपुलेट किया मुसलमानों से, कहा तुम क्या चाहते हो, हमारा खलीफा को सब पावर ले ली, खिलाफत करना, देश की बात मत करो। गांधी जी ने इतने चालाक बैरियर थे, सब जो चंपारण के लोग थे उनसे बोला मजदूरों से तुम क्या चाहते हो, छुट्टी नहीं मिले, छुट्टी मिलेगी, छुट्टी के लिए लड़ो। और यहाँ पूछा राजस्थान में स्वराज मूवमेंट आया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या लोग थे, यहाँ पर सूबेदार थे, जो सामंत लोग होते हैं। राजा ने कहा जाओ तुमको इतनी जमीन दी, जाओ मारवाड़ दिया, जाओ मेवाड़ दिया। सामंत प्रथा थी, जमीन दे देते थे। और फिर वो जो यहाँ का सामंत बनेगा यहाँ के लोगों से पैसा लेगा, टैक्स, अपना घर बनेगा, थोड़ा सा वो जो मेन राजा को दे देगा। एक राजा के अंडर में 20 सामंत होते थे अलग अलग जमीन पे। तो वो सामंत अपनी सेना भी रखते थे थोड़ी थोड़ी, और जब राजा को जरूरत पड़ती थी सेना देते थे, तो अपना खूब भरे पूरे रहते थे। अच्छा लेकिन अंग्रेजों ने जब यहाँ आक्रमण करना चाहा तो इन सामंतों ने पूछा तुम क्यों आक्रमण कर रहे हो, बोले हमको तो पैसा चाहिए, पैसा, हम पैसा देंगे, यहाँ की जनता से लूट के देंगे तुमको, तुम आक्रमण कर, रेत भरी हुई है। फिर वहाँ यहाँ के सामंतों ने ऐसा लूटना शुरू किया लोगों को कि लोग अंग्रेज तो भूल ही जाओ, अंग्रेज आए ही नहीं यहाँ पे, अंग्रेज कभी राजस्थान आए नहीं। देख वो सारे किले सब कुछ वैसे के वैसे भव्य हैं, यहाँ तो कभी आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन सामंतों ने यहाँ खून चूस लिया।
क्यों? क्योंकि हर महीने उनको दिल्ली में सोने से लदी गाड़ी पहुंचवानी पड़ी। तो अब गांधी जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बोले ये सामंत से छुटकारा दिलाओ, इसी से छुट्टी मिलेगी। बोलो नेशनल मूवमेंट पे आ जाओ। तो जो जहां था किसी को मालूम नहीं था कि किस लिए लड़ रहे हैं, सब अपने अपने काम के लिए लड़ रहे थे, लेकिन क्या सबको एक साथ कौन लाया? तो 36 करोड़ की जनसंख्या को एक साथ लाना और इंडियन लीडर बन जाना। अदरवाइज दे वर हैविंग डिफरेंट, उनके डिफरेंट एम्स थे, वो क्यों साथ लड़ते? देयर ओन, उनके अपनी परेशानियां थी, ठीक है कि नहीं? सो दे कैन नॉट कम टुगेदर, क्योंकि इतने सारे, आप ये समझिए इतनी लैंग्वेजेस हैं, उनमें पहले ही कितना डिस्क्रिमिनेशन है। तो शूद्रों से भी कहा ठीक है तुम इनके लिए लड़ो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अंबेडकर को मिला लिया, बोला अलग कहाँ जाते हो, हमारे साथ आओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस में आओ, तुम्हें क्या चाहिए तुमको यहीं से मिलेगा। जो जहाँ का था, शौकत अली जिन्ना जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट, बोले हमारे साथ आओ, सब बैठो साथ में। जब तुम यहाँ बैठोगे लोग सोचेंगे हमारा आदमी यहाँ बैठा, हम भी मूवमेंट शुरू करें। तो गांधी जी जो मूवमेंट करते थे सबके हेड को मिला दिया और बोला जो तुम्हें चाहिए यहीं मिलेगा। तो एवरीबडी वाज वन, देयर एम्स वर डिफरेंट बट दे वर फाइटिंग अगेंस्ट कॉमन एनिमी। क्या उनका शत्रु एक था कि अलग अलग था? तो एक शत्रु के खिलाफ सब रहे थे, यहाँ तक कि राजस्थानियों को भी मिला दिया, जबकि उनका एनिमी सामंत था। बोले लड़ो, हमारे साथ रहोगे तो सामंत हटवा दे। ये चीज तो ये बड़ी बात है कि नहीं? ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो वकील थे, दिमाग वाले, नहीं तो कोई कर सकता। एक अनाउंसमेंट करते, आपने देखा पिछले चैप्टर में क्या हालत थी, ज्योतिराव फुले अलग छिटक रहे थे, तो रामा स्वामी अलग छिटक रहे थे। क्या कभी नेशनल मूवमेंट हो सकता था? तुम संभव समझती हो कि कभी हो पाता? तो ये गांधी जी ही कर सकते थे, और तो कौन कर सकता? ना अब जरा देखिए, यहां पर दिखाया गया कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस was established, ये कब की गई है? देखिए 1818 में की गई है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, 1885 in December 1885. It has first 72 delegates from all over India. 72 delegates थे, बहुत बड़े नामी गिरामी लोग थे। Delegates met at Bombay from all over India, met at Bombay, और वहाँ पर एक रिटायर्ड जज थे जो ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने इसकी फाउंडेशन की। A.O. ह्यूम बोले हम बनाते हैं, हम तुमको अंग्रेजों से अत्याचारों से छुट्टी दिलाएं। तो किसी इंडियन ने नहीं बनाया, या महात्मा गांधी ने नहीं बनाया, इसकी स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम। वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिश के रिटायर्ड जज थे। सो नाउ इसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे मैंने कहा दादा भाई नरोजी, ये पारसी थे, बहुत अमीर व्यक्ति हैं। तो एग्जाम्पल दादा भाई नरोजी, आप देख लीजिए इतने फेमस थे, इन्होंने फंडिंग बहुत जबरदस्त की, इसीलिए इनका नाम पहला आया है। तो दादा भाई नाव रोजी लिखा है, लेकिन ये नए रोजी कहा जाता है, ठीक है। ये बिजनेसमैन थे और सेटल्ड इन लंदन थे। इसके अलावा और कौन कौन इसमें आए? फिरोज शाह मेहता। डेलीगेट्स, जैसे प्रधानमंत्री बोल दे कि हम अपने डेलीगेट्स भेज रहे हैं वहाँ पर, डेलीगेट्स का मतलब है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजें, जाओ अमेरिका बात करके आओ। क्या बात है? डेलीगेट्स का मतलब है यू ऑथराइज समबडी टू गो एंड टॉक टू। डेलीगेट्स का मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव। तो डेलीगेट, ठीक है ना, जैसे हम कहें फॉरेन डेलीगेशन आया, तो जो सरकारी पदों पर, बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनका ग्रुप आना, इसको कहते हैं डेलीगेशन। तो फॉरेन डेलीगेशन आता है कहीं का।
तो किसी भी कंपनी के डेलीगेशन का मतलब है उसके हाई प्रोफाइल लोग जो हायर पोस्ट पर है उसे डेलीगेशन कहते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट का भी एक डेलीगेशन होता है, वो वहाँ जाके साइन करेगा, वो ऑथेंटिकेटेड माना जाता है, जो सिग्नेचर होते हैं तो वो माना जाता है। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी, और कौन थे बताओ? फिरोज शाह मेहता, और कौन कौन आया? तो दादा भाई नौरोजी कौन थे बताओ? सर ये लंदन में स्टेब्लिश थे और सर ये बिजनेसमैन थे और और सर ये कॉमन पब्लिसिस्ट थे। इसका क्या मतलब है? वो भी लिखा है, बोल्ड में लिखा है पब्लिसिस्ट, तुम बताओ क्या है? ऐसे तो नहीं लिखा है। सर जो रिपोर्ट्स और वो करते हैं और जो आइडिया मतलब अपना कोई पब्लिश करे, अपनी एडिटर या एडिटर्स कॉलम नहीं होते न्यूज़पेपर, तो उसको पब्लिश करते थे। तो फिरोज शाह मेहता आए और बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, WC बनर्जी लिखा है, बनर्जी आए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग आए, सुंदर नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्ता, ऐसे कई लोग आए। ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए, द यंगर नेशनलिस्ट फॉर ए फर्स्ट टाइम ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट। जो दादा भाई नौरोजी थे, वो अभी आदा ने क्या बताया कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में रह चुके थे, इतने बूढ़े व्यक्ति, और वहाँ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के यंग लोगों को उन्होंने गाइड किया था। पार्लियामेंट संसद का आदमी भारतीय होकर वहाँ के संसद में थे, बड़ी बात है कि नहीं? सो वहाँ तो बिजनेसमैन थे, तो धीरे से उन्होंने क्या किया, वहाँ डेमोक्रेसी वहाँ चलती थी, डेमोक्रेसी चलती थी, लेकिन वहाँ की पार्लियामेंट में ये व्यक्ति थे। फिर ये इंडिया, ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. ह्यूम हैज फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने बनाया बोलो? रिटायर्ड, ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, वैसे जज नहीं था, ये ब्रिटिश का कोई व्यक्ति था, ब्रिटिश ऑफिशियल, फाउंडेड, INC का क्या मतलब है शौर्य? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। Now, also played a part in bringing Indians from various regions together, और भारतीयों को संगठित भी किया कि सारे लोग कांग्रेस की छत के नीचे आ जाए। तो ठीक है, एंड इन्होंने क्या किया? ठीक है, brought all Indians together, तो ये काम किया। अब जरा देखिए, Who did the Congress seek to speak for? शौर्य, इसमें क्या लिखा है? तुम तो पढ़ने लग गए। हाँ बोलो। इसमें बोला गया कि न्यूज़पेपर था द इंडियन मिरर, जो कि जनवरी 1886 में लिखा गया था। उसमें उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि बदरुद्दीन जो तैयब जी थे, उन्होंने एड्रेस द कांग्रेस एज, तो इसको हम समझते हैं, द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे। जब यहाँ पर ये हुआ तो ये वहाँ के न्यूज़पेपर में कैसे छपा, ये चीज़ लिखी गई है कि इंडियन मिरर न्यूज़पेपर था, कि भारतीय दर्पण, उस पर एक पेपर था, उसमें लिखा गया है इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ फ्यूचर पार्लियामेंट। ये जो आज कांग्रेस दिख रही है, तब का पेपर है 1885 का ना, तो उसमें लिखा है 1806 का, तो उसमें ये लिखा उस पेपर में कि यही न्यूक्लियस है, भारत की जो फ्यूचर पार्लियामेंट है इसी के चारों तरफ घूमेगी, जो कांग्रेस बना है वही इसका मेन न्यूक्लियस, तो समझते हो? ऐसा इसमें लिखा गया है। And will lead to a good of inconceivable magnitude of our countrymen. What does it mean by inconceivable magnitude of our countrymen? बोलो। मतलब भारतीयों की उस शक्ति का ये परिचायक होगी जो इनकंसीवेबल है,
कंसीव का मतलब समझते हो, गर्भधारण। जैसे महिला एक बच्चे को अपने पेट में रखती है तो इतनी क्षमता हो जाएगी भारतीयों में कि भारत वो समा नहीं पाएगी भारत में, इनकंसीवेबल, इट कैन नॉट बी हैंडल्ड। यानी इंडियंस आर सो पावरफुल दैट देयर पोटेंशियल इज इनकंसीवेबल, इट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय फ्यू, हाउएवर ब्रिटिशर्स आर हैंडलिंग अस। सो उन्होंने बोला ये इंडियन जो है उसका न्यूक्लियस, इंडियन पार्लियामेंट का न्यूक्लियस एक कांग्रेस है, एंड अल्टीमेटली वी विल सी अंडर इट्स इफेक्ट दैट इंडियन पोटेंशियल इज इनकंसीवेबल। आगे क्या कहते हैं, बद्रुद्दीन त्यागी जी एड्रेस द कांग्रेस, और 87 में इसकी सालाना मीटिंग होती थी, तो 85 में बनी, फिर 86, 87 में फिर मीटिंग में इन्होंने क्या बोला, दिस कांग्रेस इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नॉट ऑफ एनी क्लास और कम्युनिटी बट of all the different communities of India। इन्होंने क्या बताया कि अब ये देखो, गांधी जी ने भी एक ऐसा ही एड्रेस दिया, किसमें दिया, कांग्रेस में। तो ये देखो क्या एड्रेस दिया, Gandhi ji's address in Indian National Congress। Gandhi ji's address in Indian National Congress। Mahatma Gandhi's address in Indian National Congress। Mahatma Gandhi speech in Gandhi movement। ये देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका एड्रेस देखो। I want to welcome you all, every one of you. We have no secrets. इसमें मुस्लिम भी हैं।